So these are the few topics that were left in the unsupervised machine learning section of our syllabus, and we are going to cover all these today. Affinity propagation, DB-scan, t-SNE, UMAP, visualizing clusters. So all these will be covered. Affinity propagation is kind of related to somewhat of hierarchical clustering, and DB-scan is density-based clustering, right? t-SNE and UMAP are more about that reduction of the features and visualizing them. And visualizing clusters, I have put two links in which we will be looking on a website where we can actually visualize the clusters and do the things around that. So affinity propagation में क्या होता है? It is more of a graphical based clustering algorithm. Hierarchical भी है उस फॉर्म में कि हम कंबाइन कर रहे हैं, एंड इट इज सिमिलर टू के मीन्स एंड के मिडॉइड्स. बस इसमें एक डिफरेंस ये है दैट इन के मीन्स एंड के मिडॉइड्स या ऑल दोज काइंड ऑफ मॉडल्स दैट वी स्टडीड अर्लियर, उसमें हमें के का वैल्यू देना पड़ता था इन दिस काइंड ऑफ के मीन्स एंड वेरिएशंस ऑफ ऑल दोज. इसमें एफिनिटी प्रोपेगेशन में वी डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ वैल्यू, प्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ के ड्यूरिंग कैलकुलेशन. जब वो रन हो रहा होगा, इट विल डिसाइड इट्स वैल्यू ऑफ के ऑटोमेटिकली ऑन द बैक एंड. एफिनिटी प्रोपेगेशन फाइंड्स द एग्जाम्पलर्स. इसमें क्या होता है कि जैसे ये रैंडमली एक चूज कर लेता है कि भाई मेरे को ये एग्जाम्पलर रखना है. एग्जाम्पलर मतलब इट्स पार्ट ऑफ दैट क्लस्टर. तो उसके बेसिस पे वोटिंग होती है नेबर्स में दैट इफ दे वांट टू जॉइन दिस एग्जाम्पलर और नॉट. ठीक है, सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द मैथ्स बिहाइंड इट. Affinity propagation takes as input the similarities between the data points and identifies the exemplars. Messages are exchanged between the data points until a high quality set of exemplars are obtained. So let's say that these are the 5 preferences of different participants. ठीक है, टैक्स फ्री फी ऐसे करके एक टेबल बना हुआ है, एंड वी हैव टू वर्क अराउंड इट using the AP technology, AP model. So we need to calculate these 4 matrices, and similarity matrix काफी आसान है, correlation के जैसा है, मिलता जुलता है. We will look into the maths behind it, and responsibility matrix, availability and criterion. तो हमें ये चारों calculate करने हैं to get the job done for that affinity propagation. So in this, what we are trying to do is whatever our values were, initial values जो भी थे, उसमें मतलब जो हमारे ये वाले values थे, आपस में इनका हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया सिमिलैरिटी का, एंड वी हैव गॉट ऑल दोज वैल्यूज कि वो क्या सॉल्व करके आ रहा है. ऑब्वियसली डायगोनल पे इट इज जीरो बिकॉज सिमिलैरिटी में जीरो ही आएगा, बट अदर नंबर्स आर -7, -6, -12, -17 ऐसे करके. द मिनिमम नंबर इन होल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -22. So similarity in our case is defined as a negative of the Euclidean distance, ऐसे करके पूरा वो लिखा हुआ है. And the values of the off diagonal will be, I mean जो भी diagonal पे नहीं है, they are actually dictating the number of clusters that will be formed. Smaller the number, lesser the number of clusters will be obtained. So -22 smallest है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज होगा, अभी मैं दिखाऊंगा. So let us look at the extreme cases जहाँ पे वैल्यू जीरो है या फिर वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज. मिनिमम -22 है for an element I. We took for another element j for which the similarity ij is the highest. तो based on these rules पीछे टेबल बन गया था अपना. Now let's look at the similarity matrix जो हमने अपडेट करा है. So based on that, uh, based on this figure, हमने क्या किया, we have made a similarity matrix जिसमें all other values are same, बस diagonal पे हमने -22 डाल दिया, which is the lowest of out of all the values. -22 यहाँ पे डाल के, this is how the similarity matrix has been made. Now let's look at the responsibility matrix. 4 थे, तो ऐसे एक availability भी होगा. ये अभी आ गया है, but let's see at this responsibility matrix क्या है. So it is actually equal to similarity minus the max of availability plus similarity. अब availability यहाँ पे आ गया है, which has not been taught, but अभी बताऊंगा. Actually these are both interlinked. अगर आप availability में देखोगे, you have this responsibility matrix वाला part also. So I was not sure कि किसको पहले रखूं, but दोनों का आपस में interrelation है. So responsibility matrix quantifies how well suited the element K is to be an exemplar of element I, and taking into account the nearest contender. So ये formula के basis पे all the values will be done, and initially values will be 0 in this responsibility matrix. Intuition is that RIK can be thought of as relative similarity between I and K,
It quantifies how similar I is to k and compared to sum of k. So based on this formula, we can make this responsibility matrix, and we will see the values also after 2 slides. Availability matrix में क्या हो रहा है? We are taking the minimum of these two things. So one side we are taking the max of 0 comma responsibility matrix, where I dash is some value that we are taking, where I mean I is not equal to k in this case, यहाँ पे लिखा हुआ है, and 0 comma rkk. So where I mean ये diagonal वाली values की बात हो रही है, तो अगर same value है तो वो diagonal के लिए ऐसा होगा और non diagonal के लिए max value होगा. Based on that, this availability matrix can be filled. So self availabilities are calculated as follows. तो अगर आपने एक एक देखना है, based on that you can use this formula. So these are the matrices after these rules जो अभी पीछे देखे हैं. Responsibility matrix will look like this and the availability matrix will look like this, using those formulas. Updates हुई हैं value में. This is the last thing that we need to calculate. Similarity हो गया, responsibility हो गया, availability हो गया. Now we want to look into calculation of criterion matrix. It is calculated after the updating is terminated, and criterion matrix C is the sum of R and A. तो जो पीछे calculate किया था उन दोनों को बस sum कर दो और यहाँ पे add करके लिख दो. दोनों का add करके criterion matrix बन जाएगा, which is the final one. So these were the 4 steps, and the elements with the highest criterion value in each row would be designated to be an exemplar. Elements corresponding to the rows which share the same exemplar are clustered together. So based on that, we can say that Alice, Bob, and Kerry, the first 3 people, are in the one cluster, and Doug and Edna are in the other cluster. So this is how the affinity propagation works. Now let's look at the DB scan. I have tried to put lots and lots of graphics in DB scan, tsne, and UMAP, taken references from YouTube. So this is how the beginning is. Abhi, let's say that we have imagine, I mean, we have let's say we have this kind of data where we have multiple people, बहुत सारे हैं, where we have weight and height of different people. ठीक है, 56 kgs and 150 centimeter, ऐसे करके 62 kg, 170 centimeter, बहुत सारे ऐसे हमारे पास values हैं, and we want to plot them on 2D graph. तो अगर ऐसे plot करेंगे, let's say हमारे पास ऐसे आ गया that this is the initial cluster. मतलब cluster क्या है? This is the initial plot that how we want to visualize it on 2D plane. Now here my weight is on the x-axis and height is on my y-axis. By identifying, I mean, हमें देखने से तो पता चल ही रहा है कि there are two clusters, and by identifying these two different but relatively dense clumps of people, मतलब हो गया, हमें पता चल रहा है कि वो दो अलग-अलग हैं. And in contrast there are these people that are far away, जो हमें outlier लग रहे हैं. So by eye clustering this data is pretty easy. मतलब देख के तो पता चल ही रहा है. However, because there is this cluster, I mean these clusters are nested. Nested का मतलब ये है कि जो blue वाला है वो green वाले ने उसको wrap करा हुआ है, ठीक है. And relatively, I mean k means वाला ये काम नहीं कर पाएगा. k means में ये दिक्कत है that वो इसको मतलब k means वाला if it will work, it will do something like this. वो distance basis पे इनको ऐसे वाला clustering कर देगा, उसको रैप वाला पता ही नहीं चलेगा कि वो भी देखना था. So k means is not a good way to do this thing, and this will, I mean the green wala part will also become part of blue based on distance. So we need some clustering algorithm that can handle the nested cluster. अगर nested वाला ऐसा कोई आ जाए हमारे पास data, we need to work around that. And अभी इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही dimensions हैं. Let's say 3 होते अगर age भी साथ में होता. So we will have this 3-dimensional graph, and drawing 3-dimensional graph is also fine. अगर लेकिन 4 होता, 4 से ज़्यादा होता, 5-dimensional होता, 10D होता, 100D होता, ठीक है, बहुत सारे dimensions हैं. Then how will you look at the clusters? So I mean this DB scan method can help us to do that job, where we can find the clusters within the nested clusters at a high dimension. So DB scan is very well, I mean can work well in that condition. So let's go back to the original, these 2-dimensional graph, I mean this 2D graph, and let's see that how this DB scan will help us to get the job done जो हमें देख के पता चल रहा है. Remember we need to identify by the densities. अब इसमें एक important point ये है कि हमें densities के basis पे ही काम करना है, and these are the high density regions. So जो बाहर वाले हैं वो outlier हैं,
and let's say that DBScan uses the density of these two of the points to identify these two clusters. तो वो backend पे कर क्या रहा है वो दिखाता हूँ. So starting we have this unclustered raw data, but then अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट उठा लेंगे, ठीक है, रैंडमली. अब उसके नेबर्स में देखेंगे कि कौन कौन उसके साथ टच हो रहा है. लेट्स से वी ड्रॉ दिस ऑरेंज सर्कल अराउंड इट, और जो जो ओवरलैप हो रहे थे वो हमने देख लिए कि भाई ओवरलैप वाले 8 जने हैं. देयर आर 8 अदर पॉइंट्स दैट आर पार्शियली overlapping with this thing जो हमारा ये circle है. So all these I mean all these points are close to, I mean the red point is close to the other 8 points, and this is how the radius of DBScan will help us. अब यहाँ पे DBScan में ना हमें radius कह लो या density, ऑब्वियसली यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा आगे जाके वेयर वी हैव टू फाइंड दैट हमें कितना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू रखना है कि इतने पॉइंट्स तो आ ही जाएं तभी हम उसको एक जगह पे क्लस्टर करेंगे. सो अभी कोई और रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, रेड पॉइंट जैसे एक और ले लिया. अब उसके नेबर्स में देख लिए तो इसके सेम रेडियस में 5 जने आ रहे हैं, जैसे इनिशियली पहले 8 थे. इनिशियली फॉर अदर्स हमने औरों का देखा तो हमारे पास मल्टीपल करते कराते ऐसे पता चल रहा है कि किसी के पास 2 पॉइंट है नेबर में, किसी के पास कोई नहीं है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, ऐसे करके रैंडमली हमने सारे देख लिए. नाउ वी हैव टू डिफाइन एक नंबर, एंड दैट नंबर विल बी 4 इन आवर केस. एक 4 पॉइंट्स का नेबर का हमने ले लिया कि मिनिमम 4 होने चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये मेरा सेम क्लस्टर में आएगा. एंड दीज पॉइंट्स विल बी द, दिस विल बी द कोर पॉइंट. मतलब कोर पॉइंट क्या है, जिसके 4 या 4 से ज्यादा नेबर्स हैं. Now the number of close points for a core point is user defined. अब ये number of close points for a core point ये वही चीज है जो मैं कह रहा था कि हमें एक पैरामीटर देखना पड़ेगा that how many clusters, मतलब क्लस्टर में हमें कितना मिनिमम नंबर रखना है, ठीक है. सो एनीवे 4 पॉइंट्स के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये 3-4 सर्कल बन रहे हैं, एंड अदर 2 सर्कल्स आर बीइंग रिजेक्टेड क्योंकि उनके पास 4 पॉइंट नहीं है. सो दीज आर नॉन कोर पॉइंट्स. तो यहाँ पे कोर पॉइंट्स के बेसिस पे हमने सबको देख लिया कि मेरे कोर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनके मिनिमम 4 नेबर आ रहे हैं. जो नहीं आ रहा उसको हम नॉन कोर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है. दीज आर द नॉन कोर पॉइंट्स. Now let's randomly pick one core point and assign it to the first cluster. Similarly फिर हम उसका देखेंगे कि और उसके core point के साथ और कौन कौन overlap हो रहा है. जो जो overlap हो रहा होगा हम उनको सबको सेम क्लस्टर में डालते चले जाएंगे, ठीक है. सिमिलरली ऐसे डाल दिया. एंड अगर मेरा किसी पॉइंट के साथ वो नहीं आ रहा, अगर जैसे हेयर वी कैन सी दैट 2 कोर पॉइंट्स एंड 1 नॉन कोर पॉइंट दैट आर क्लोज टू द ग्रोइंग फर्स्ट क्लस्टर, तो उस केस में हम सिर्फ कोर पॉइंट को ही ऐड करेंगे, नॉन कोर पॉइंट को नहीं करेंगे ऐड. वो बाद में देखेंगे कि इसको कैसे करना है, बट अभी के लिए इसको नहीं ऐड किया. सिमिलरली सिर्फ कोर पॉइंट्स के लिए ये वाली चीज चलेगी, एंड वी आर बिल्डिंग आवर क्लस्टर एज इट इज, जैसे जैसे कोर पॉइंट्स मेरे पास थे. Now we will start working on the non-core points, and all those non-core points, मतलब नॉन कोर पॉइंट्स तो अब खत्म हो गया. सो ऑल दोज नॉन कोर पॉइंट्स विल बी असाइन टू द फर्स्ट क्लस्टर. लेकिन वो सिर्फ यही होगा कि अगर तो मेरे फर्स्ट क्लस्टर के पास वो आ रहा है सर्कल में तो ठीक है, तो नॉन कोर को हम कोर में कन्वर्ट कर देंगे. बट इट कैन नॉट फर्दर एक्सटेंड इटसेल्फ के हम किसी बाहर वाले को भी अपने साथ ले लें, वो नॉन कोर को वो वाला फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है. एंड सो वी विल ऐड दिस वन, बट दिस विल नॉट एक्सटेंड टू द अदर नॉन कोर. तो वो बाहर वाले को इस वाले को नहीं लेगा, सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करके अपना कोर पॉइंट बनाया. And which is close to the known core point that was just made part of the first cluster will not be added to the first cluster because it is not close to a core point. So unlike core points, non-core points can join a cluster, they cannot extend it further. तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया. Now let's say that we are done with the first cluster, वो सब कर लिया हमने, and जो बचे हैं वो बच गए. And then in the second part हमने देखा that हमारे कौन कौन से फर्स्ट क्लस्टर में तो चलो नहीं आए थे, बट दिस इज ए डिफरेंट क्लस्टर, ये क्लस्टर 2 होगा. So this is my second cluster in which we have this blue color now. एंड सेम रूल लगाएंगे, फिर हम उसके नॉन कोर पॉइंट्स के ऊपर उसको ऐड कर देंगे, और वो बन गया, 2 क्लस्टर बन गए यहाँ पे.
Now all the other remaining points जो हमारे non core थे and they are not close to the core points in either of the cluster are not added, and they are called the outliers, and this is how the DB-scan works. So let's look at some theory part of DB-scan. DB-scan is a density-based clustering algorithm that divides dataset into subgroups of high density, जो भी पीछे देखा है. So DB-scan will group together the points that are close to each other based on distance measurement. यूजुअली यूक्लिडियन ही होगा एंड ए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे हम वो देखते जाएंगे एंड वी विल कीप देम एडिंग. तो इसमें एक ईपीएस होता है. सो दिस इज वन थिंग आई मिस्ड. सो डीबी स्कैन एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स. इसके लिए इसको दो पॉइंट्स चाहिए. दीज विल बी टू पैरामीटर्स, ईपीएस व्हिच इज ईपीसॉम एंड दिस मिन पॉइंट्स और द मिनिमम सैंपल्स के कितने हमने कम से कम उसमें रखने हैं. So EPS is the distance parameter that defines the radius to search for nearby neighbors. जो हम कह रहे थे ना कि वो orange circle बनाया था. So that orange circle was actually made by using this EPS as a distance parameter, and we can imagine that each data point having a circle with radius EPS is drawn around it. वो orange वाला EPS था as a radius. So the value of EPS taken to cluster. अब इसमें ईपीएस कितना बड़ा छोटा लेना उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इफ ईपीएस इज वेरी स्मॉल डिसाइडेडली फ्यूअर डेटा पॉइंट्स विल बी कंसीडर इन वन क्लस्टर. ऑब्वियसली फिर वो बहुत सारे मल्टीपल क्लस्टर बन जाएंगे और अच्छे से क्लस्टरिंग भी नहीं होगा. एंड लार्ज पार्ट विल बी अनक्लस्टर्ड. द अनक्लस्टर्ड डेटा पॉइंट्स विल बी कंसीडर आउटलायर्स. तो उसमें दिक्कत आ सकती है. एंड अगर ज़्यादा ले लेंगे बड़ी वैल्यू देन नो रियल क्लस्टर्स विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि वो सारा कुछ एक ही में डाल देगा. तो हमें ईपीएस का वैल्यू सोच समझ के डालना है एंड द ईपीएस शुड बी चूजन based on the distance of the data set. We can use a k distance graph to find it, but in general EPS छोटा ही हो तो बेटर है. एंड मिनिमम सैंपल्स और द मिनिमम पॉइंट्स आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमने कम से कम रखने हैं. जैसे अभी पीछे हमने देखा था इन दैट डायग्राम वी टुक 4 एज द मिन सैंपल्स के कम से कम 4 तो होना ही चाहिए तभी वो क्वालिफाई करेगा. तो वो चीज़ है, यहाँ पे हमने 5 बोल दिया बट द थिंग्स आर सेम. And if you want to visualize it, ये वाला चीज़ I will show you in the end visualization part में. I have put that in the visualization slide also later on. And these are the two applications. ये मैंने यहाँ पे article डाल दिए हैं and you can go through these articles to just to get the gist of real world application of DB scan. मतलब ये वाला first वाला मैंने देखा था. In this they are actually discussing about that there was, let's say that हमें पता है that Netflix is having thousands of clusters throughout the world. तो नेटवर्किंग में मतलब उनके ग्लिच आ गया एंड देयर टीम इज ट्राइंग टू वर्क. तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम रखना पड़ेगा थ्रू विच दे वर डिकोडिंग के मतलब क्लस्टरिंग हो जाए कि कौन सा मेरा मशीन खराब हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कौन सा क्लस्टर है जो ऑनलाइन हमारे सर्वर पे इफेक्ट डाल रहा है. तो ये थोड़ा सा वैसे वाली बातें कर रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल में. एंड सेकंड आर्टिकल आई हैव नॉट रेड बट मैंने यहाँ पे डाल दिया बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूजिंग डीबी स्कैन. एंड दिस लिंक कैन बी एक्सप्लोर्ड टू सी जो भी हमने पीछे अभी देखा है. मैंने वो सारा कुछ वहाँ से वो ग्राफिक्स वाला पार्ट आई टुक फ्रॉम दैट यूट्यूब वीडियो. नाउ लेट्स लुक एट द टी टी डिस्ट्रीब्यूटेड stochastic neighborhood embedding, and this will actually again help us in doing the clustering part. ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला वही चीज़ है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो वो वाला टी है. So T distributed stochastic neighborhood embedding, and in this what we are trying to do is करना क्या है that let's say that we have these points, ठीक है, जो ऊपर हैं and we want to plot them on a 1D. अब 2D वाले को 1D कर रहे हो, थोड़ा सा टीसनी का तो काम ही ये है that we have to bring the things into lower dimension. तो अगर हम सीधा ड्रॉ करते लाइंस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम वाई एक्सिस पे करेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा. एंड इंस्टेड ऑफ टू डिस्टेंट क्लस्टर्स वी विल सी दिस मिशमैश, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉच पॉच हो गया एंड वी आर अनेबल टू सी के ये कौन से क्लस्टर में आ रहा है. एंड सेम फॉर द एक्स एक्सिस. बट टीसनी जो मेरा काम मतलब है, टीसनी विल हेल्प मी टू जनरेट समथिंग लाइक दिस. 1D पे भी कर देगा एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड ऑल्सो. हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा किसका क्लस्टर का पार्ट है. एंड लेट्स लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस टीसनी, ये काम कैसे कर रहा है. ओरिजिनली इफ यू ड्रॉप डाउन द पॉइंट्स ऑन दिस 1D प्लेन तो वो कुछ ऐसा दिखेंगे, ठीक है. रैंडमली अगर हमने देखा तो इनिशियली लेट्स से दिस बॉटम लाइन इज माय बेसिक प्लॉट where we are
गेटिंग द थिंग्स डन। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए टीसनी क्या करेगा, इट विल मूव दीज पॉइंट्स, थोड़ा लेफ्ट राइट पे मूव करके क्लस्टर बनाएगा इनके। एंड लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेड पॉइंट से। सो वी वांट टू मूव इट समवेयर। अब कहाँ पे करेंगे, हमें पता है दैट रेड वाले जैसे ये इकट्ठे हैं तो यहाँ पे भी रेड वाले इकट्ठे होने चाहिए। सो दिस फर्स्ट रेड पॉइंट विल ट्राई टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, बट आई मीन it moves to, it want to move to that red wala point, but the other things are repelling it। तो जो ये orange वाला है या blue वाला है, it is repelling, but because the attraction is strongest तो वो red वाला move कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा at one point it has moved to the right। and similarly फिर हम second point की बात करेंगे, जो मेरा अब orange है, अब orange वाला orange के पास जाएगा, ठीक है, and again they will एक दूसरे को पुश करके थोड़ा आगे चले जाएंगे, it will move closer। and each step, at each step a point on the line is attracted to the points it is near and repelled by the points it is far from। so जो यहाँ पे ऊपर distances की बात हो रही है, अब इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, थोड़ा मैथमेटिकली भी सारा डिस्टेंस वगैरह बना बना के यहाँ पे डाला हुआ है, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर दैट इट इज ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू पुश ईच अदर एंड गेट क्लोजर टू ईच अदर, जिससे हमें टीसनी में ऐसे करके बना के वो दे देता है कि आपका मैंने क्लस्टर्स बना दिया। सो इनिशियली अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा अब इसकी डिटेल देख लेते हैं हो क्या रहा है। अभी हमने पीछे देख लिया कंसेप्ट क्या है, बट नाउ हाउ इट इज वर्किंग। सो डिटर्मिन द सिमिलैरिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर प्लॉट, and for this first example let's focus on determining the similarity between this point and all the other points। तो ये ब्लैक वाले के साथ बाकियों का देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दें, सो दिस इज नॉट ए टी डिस्ट्रीब्यूशन, it's just a normal distribution curve based on distance। हमने देखा कि यार जो ये वाला है this part is actually मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, अगर मैं मेरा सेंटर में ये है तो ये यहाँ से इतना दूर है, कोई और मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, कोई और थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, तो मतलब बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे हमने ये हाइट्स निकाल ली कि कौन कितना दूर है, और प्लॉट भी करवा के देख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कितना उसका लेंथ है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी वर सेइंग दैट द लेंथ ऑफ दिस लाइन जो ये बन रही है इट इज अनस्केल्ड सिमिलैरिटी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट प्रपोज इन द ओरिजिनल रिसर्च पेपर जब टीसनी लॉन्च हुआ था, बट दिस इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि मतलब ऐसा कुछ करके हम इसके डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। एंड जो हमारा कोई और होगा जैसे ऑरेंज वाला है, रेड वाला है, वो हमारे कॉर्नर्स पे चले जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली अवे फ्रॉम दिस black point। So using normal distribution means that distant points have very low similarity values and the close points have the high similarity values। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने फिर सबका निकाला कि भाई चलो सबका निकाल के देख लेते हैं। ब्लू वाला यहाँ पे प्लॉट हो गया एंड रेड एंड ऑरेंज वाले अलग अलग दूर हो गए, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी इजीली फाउंड दैट जो मेरे पास हैं ब्लू वाले के वो एक क्लस्टर में है। एंड सिमिलरली सारे डिस्टेंस निकाल लो, अगर किसी का जीरो आ रहा है तो उसको दूर कर दो, मतलब अगर कहीं पे वैल्यू हाई आ रही है, जैसे इस केस में वैल्यू हाई है डिस्टेंस की, मतलब ये वाली जो लेंथ है, so that will be the point of interest for us। So the next step is to scale the unscaled similarities so that they all add up to one। now why do the similarity scores need to add up to one, देखते हैं इसको कैसे काम हो रहा है। For example हमने एक और क्लस्टर डाल दिया एंड विच इज नॉट वेरी डेंस, मतलब आधा ही है, जैसे अगर यहाँ पे कम जगह में ज्यादा जने थे, यहाँ पे उतने ही दूर दूर हैं, ठीक है। एंड अगर हम इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे दोनों का ऐसे दिखेगा जैसे लेफ्ट राइट पे है कि दोनों का ब्लैक पॉइंट उठाया एंड बेस्ड ऑन दैट हमने उसका देख लिया कि इफ द if the points जो पास हैं have the high have the half density as these points on the right hand side, the curve is half as wide as this curve। जो right hand side पे मतलब obviously जो ज़्यादा दूर दूर है उनका curve भी थोड़ा खुला बनेगा। so this thing we know कि वो mean होता है standard deviation होता है, from that point of view हमें पता है idea है कि they will be wide on the right hand side। और अगर हम इसकी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, अपर केस में स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 1 है तो नीचे वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। एंड
इफ यू आर नॉर्मलाइजिंग इट, वो जो पीछे बोला गया था कि आप उसको स्केल टू 1 करना है, सम टू 1 करना है, तो स्कोर डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो 0.82 एंड 0.18 ऊपर वाले केस में आ रहा है, नीचे वाले केस में भी सेम आ रहा है, चाहे वो डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं कम है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेशियो सेम रह रही है। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग, एंड दीज विल बी सेम. So this implies that the scaled similarity scores for this relatively tight cluster are same for this relatively loose cluster on the right hand side. And but तीसरी में क्या हो रहा है, it has a perplexity parameter equal to the expected density, and that comes into play. But these clusters are more similar, मतलब ठीक है, हमें पता चल गया कि एक पैरामीटर होगा इसमें तीसरी में. नाउ बैक टू रीजनल प्लॉट. अब यहाँ पे अभी तक हम पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बट नाउ वी विल डू थिंग्स थ्रू, नॉट थ्रू द, आई मीन नॉर्मली तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ऐसे चल रहा था, बट नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन आर टी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थिंग. बट बिफोर दैट वी वांट टू शो कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो जो डिस्टेंसेस थे उनको ना हम प्लॉट कर रहे हैं, मतलब बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने वो ग्राफ पे बनाया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इट इज लुकिंग लाइक दिस. अगर हम उसकी सिमिलैरिटी देखें डिस्टेंसेस के बेसिस पे प्लॉट कर लो तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन के निकल आएगा. हाई सिमिलैरिटी वाला रेड जोन है, वाइट वाला लो सिमिलैरिटी है. ठीक है, एंड ऐसे करके यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे काम कर रहा है ये. नाउ all those things will be drawn to 1D plane and things will be fine. जो भी डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो वहाँ पे शो हो जाएगा. एंड लास्टली ड्राइंग ए लाइन, मतलब यहाँ पे अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, जो मैं अभी 1 मिनट पहले कह रहा था, नॉट बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि टी वाले का ना हाइट कम होगा, मतलब इट इज नॉट वेरी हाई. जो ब्लैक वाला इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी वाला इज रेड. एंड इसका जो टेल्स है, टेल्स इसके थोड़े से टॉलर होंगे, एंड इनफैक्ट दे विल बी डेंसर ऑन द टेल. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला थोड़ा सा पतला होगा ऑन द टेल्स. तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्लॉट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, टी वाला मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है. सो टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला थोड़ा सा मैसी है. ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर. तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव द पॉइंट्स. ठीक है, तो उनको मूव करो, मूव करके, वो मूव कर ही इसलिए रहा था सो दैट वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी थोड़ा सा सॉर्टेड मैनर में मैट्रिक्स बना पाए. एंड इट विल यूज स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं कर सकते. इट विल मूव वन बाय वन, थोड़ा सा दिखने में भी ठीक रहेगा अगर 1D उसका विजुलेशन करना है. सो नाउ व्हाई डू वी use this t distribution? uh, I mean, now finally to tell you why the T diffusion is used. Without it, the clusters would all clump in the middle and will be harder to see. तो मतलब mainly this was it. जो हम एक दूसरे को वो डिस्टेंसेस के बेसिस पे एक दूसरे को प्लॉट करके हमने देखा, एंड दे वर ट्राइंग टू पुश ईच अदर टू कम क्लोजर फॉर ब्रिंगिंग द क्लस्टर्स, आई मीन इन द 1D प्लेन, एंड इट विल बी इन ए सॉर्टेड मैनर. हमें पता भी चल रहा है कि क्लस्टर्स ये वाले हैं जैसे ब्लू रेड ऑरेंज दिख रहा है. सो दिस इज हाउ द टीसनी इज वर्किंग. Now let's look at the UMAP. UMAP is the uniform manifold approximation and projection. And this is also a dimensional reduction technique. Initially, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है where it is not easy to graph it, ये मेरा रिड्यूस करके उसको ग्राफ करने में हेल्प करता है, एंड इट इज़ हेल्पिंग अस टू विजुलाइज द थिंग्स easily. And we will take the same example. मेरे पास let's say weights and heights हैं, एंड आई मीन दिस इज द डेटा सेट, बहुत बड़ा है, और उसको हम अगर प्लॉट करेंगे सेम वही सब है यहाँ पे. एंड अगेन मोर देन 4 डायमेंशन हम नहीं देख सकते. सो व्हाट टू डू? बेसिक हमारा इंट्यूशन कहता है कि हम पीसीए लगा लेते हैं. पीसीए विल रिड्यूस इट. 4D 5D को 2D में करो या 3D में करो, विजुलाइज कर लो. बट उसमें दिक्कत ये है दैट सिर्फ पहले 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के पास ही मेजॉरिटी रहती है. अगर पहले 2 के पास ज़्यादा वेटेज है तो तभी वो ठीक से काम करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे उसमें दिक्कत आती है. So PCA will not work for highly complicated data set, let's say, which is having
मे बी 20, 30, 100 डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। तो PCA इज फाइन अप टू 10 और 15, बट बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, अगर 50 हैं, 100 हैं, 1000 फीचर्स हैं, तो PCA इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. So if we can't use PCA, what to do? Here our UMAP will help uniform manifold approximation and projection. इसमें क्या हो रहा है, we will plot them into lower dimension. अब वो काम कैसे कर रहा है उसका डिटेल देखते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा है यूमैप वाला, बिकॉज इट इज़ हाईली एफिशिएंट इवन फॉर द लार्ज डेटा सेट्स, एंड सिमिलर सैम्पल्स टेंड टू क्लस्टर टुगेदर इन द फाइनल आउटपुट. मतलब ये बेसिक तो है ही है, मतलब यू कैन मेक द क्लस्टर्स, यू कैन हाईलाइट द आउटलायर्स, वो सब भी इसमें हो जाएगा. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट द यूमैप डज एंड हाउ इट वर्क्स. इनिशियली लेट्स से मेरे पास ऐसा करके एक ग्राफ है जिसमें ABCDEF 6 पॉइंट है, एंड यू वांट टू प्लॉट देम ऑन ए लोअर डायमेंशनल ग्राफ, 1D में प्लेन में लेके आना है 2D वाले को. इट शुड लुक लाइक दिस, ठीक है. इट यूमैप विल कन्वर्ट इट. तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में लेके आ रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है. Now, if we look at the high dimensional data, we will see that the points ABC are relatively close to each other. मतलब अब distances की बात होनी शुरू हो गई है कि ABC वाले पास हैं, DEF वाले पास हैं, तो ये दो अलग अलग clusters हैं. And the goal of UMAP is to create a low dimension graph of this data that preserve the high dimensional clusters and these relationships. तो वो distance के basis पे यहाँ पे उसको 1D में plot कर रहा है 2D वाले को. And this UMAP is valid even for a 100 dimension को अगर convert करना है 3D में. Again the concepts will remain same. यही calculation फिर वो 100 dimension पे करेगा. अभी के लिए हम सिर्फ 2D to 1D देख रहे हैं. So the general idea is to initialize the low dimensional points and then move the lower dimensional points around until they form the clusters. ठीक है, आगे पीछे करके मूवमेंट करवानी है. मूवमेंट कैसे करवानी है वो भी देखेंगे. In other words, because points A, B, and C are clustered together and are relatively far from each other, uh, UMAP wants the low dimensional points A, B, and C to be close. ठीक है, अब मतलब बेसिक में हमें समझ में आ रहा है. सो अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है. नोट दैट अगर हम इनको प्रोजेक्ट करवा दें एक्स एक्सिस पे तो ये काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बॉटम पे मिशमैश ऑफ पॉइंट्स विल बी सीन. नाउ अगर थर्ड क्लस्टर आ गया, अगर हमने एक और क्लस्टर लिया है और अगर उसको मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, इट विल अगेन नॉट गिव अस ए वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है. एंड so what UMAP does is it calculates the similarity score that helps identify the clustered points. So it can tell, so it can try to preserve that clustering in the low dimensional graph. And the first thing is that वो distances निकाल लेता है सबके. जब उसको सबके डिस्टेंसेस मिल गए, इट विल ऑल्सो प्लॉट दम. अब वो प्लॉट करना शुरू करेगा. तो सबसे पहले सपोज हमने ए वाला लगा दिया एंड ए के बेसिस पे वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग. तो बी वाला 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 की दूरी पे हमने बना दिया इसको. सिमिलरली जो बाकी हैं उनको भी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया. सी वाला इज 2.4 एंड अगेन डी ई एफ वाले विल बी फार अवे. मतलब टेक्निकली जो जो डिस्टेंसेस थे हमने वो वहाँ पे प्लॉट कर दिए डिपेंडिंग, स्टार्टिंग विद द पॉइंट ए. मतलब एक ए के बेसिस पे ही हमने सारा प्लॉट बना दिया. ऐसे हम बी के हिसाब से बनाएंगे वो आगे जाके देखेंगे, बट ए के हिसाब से ऐसा बन गया. नाउ वी ड्रॉ ए कर्व ओवर द डेटा टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर्स. तो एक कर्व बनाएंगे, ठीक है. एंड द शेप ऑफ दिस कर्व विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाई डायमेंशनल नेबर्स. अब नेबर्स भी देखने हैं कि भाई कितने नेबर्स है मेरे पास, बेस्ड ऑन दैट शेप डिसाइड होगा. A common default value of the number of high dimensional neighbors is 15 minimum. अगर हम sklearn की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसमें 15 नेबर्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है. वेयर वी हैव ए टाइनी डेटा सेट, मतलब यहाँ पे अपना डेटा सेट छोटा है तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं. एंड टू बी क्लियर द नंबर ऑफ नेबर्स वी वांट ईच पॉइंट टू हैव इंक्लूडेड द पॉइंट इटसेल्फ. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास हम 3 ले रहे हैं वैल्यू को, इसका मतलब ए, अगर ए के साथ हम किसी को ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ही और ले पाएंगे क्योंकि ए भी गिना जाएगा उसमें, ठीक है. सो वी कैन ओनली टेक 2 अदर पॉइंट्स एज नेबर्स. नाउ लेट्स लुक एट सम मैथ्स. द पर्पस ऑफ दिस मैथ इज टू अंडरस्टैंड ये इसके जो पैरामीटर है वो कैसे काम कर रहा है, विच इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूमैप पैरामीटर. क्योंकि अगर ये हम थोड़ा बहुत नंबर्स नहीं देखेंगे, जैसे नियरेस्ट नेबर हैं उसके
नेबर्स के बेसिस पे वी हैव टू टेक सम डिसीजन। तो वो यू मैप बैकएंड पे क्या कर रहा है, प्लॉट कैसे कर रहा है, वो देखना है। एंड हेयर वी विल टेक द लॉग बेस 2 ऑफ द नेबर्स। ठीक है, अगर मैंने सपोज 3 करा तो log 3 बेस 2 इज 1.6। एंड इसका मतलब ये 1.6 वैल्यू डिफाइन करेगी कि मेरा शेप ऑफ द कर्व कैसा दिख रहा है। And the curve is shaped in such a way that the y-axis for the nearest neighbor, uh, which in this case are points B and C, ठीक है, are added up to the log 2 नियरेस्ट नेबर ऐसे करके। मतलब जो हम ये बी और सी के बेसिस पे प्लॉट कर रहे हैं वो मतलब इट शुड बी द नियरेस्ट नेबर फॉर ए, जो पास होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उसका बेल शेप कर्व बनाएंगे जितना भी हमारा थोड़ा बनेगा। इन अदर वर्ड्स दिस कर्व इज शेप्ड द वे इट इज so that the y-axis coordinate for B is 1 and C is 0.6। तो वो आपस में जैसे हमारा वो 1.6 था, ऊपर 1.6 आया हमारा वो, तो हमने उसको प्लॉट ऐसे करना है कि टोटल सम उसका बी और सी का 1.6 आ जाए। तो बी को हमने 1 दे दिया एंड सी को हमने 0.6 दे दिया, तो टोटल हमारा 1.6 है। ठीक है, एंड जो भी हमारा वो log 2 का वैल्यू आ रहा है उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है इस पूरे कर्व पे। तो थोड़ा सा एक आइडिया समझ में आ रहा है कि ये प्लॉट बन कैसे रहा है। Now adding these scores together give us 1.6, that is the target number we are shooting for, and thus the y-axis coordinates for B and C are their similarity scores। तो जहाँ पे जो मेरा y-axis है जैसे 1 है 0.6 है तो वो वहाँ पे उसका y-axis पे वैल्यू आ गया, it is the similarity score। Since the numbers scored for D, E and F are 0, we can ignore them for now and let's save the scores of B and C। तो मेरा B के साथ आ गया 1, C के साथ आ गया 0.6। सिमिलैरिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना पास होगा, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए 1 और 0.6 ऐसे करके हो गया। नाउ यही चीज हम बी के लिए करके देखते हैं। अगर बी के लिए करेंगे वी विल प्लॉट ऑल द डिस्टेंसेस एंड वी विल गेट द सम। तो वहां पे अगेन 1.6 आएगा। उस केस में अब ए और सी को हमने वैल्यूज देने हैं एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बी टू ए 1 सिमिलैरिटी एंड सेम सिमिलरली बी टू सी 0.6। तो वही चीज यहाँ पे प्लॉट कर दी, हम अलग अलग के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली सी के लिए कर दोगे सेम वही बनेगा। Now you may have noticed that the similarity score for C relative to B is 0.6, ठीक है, and it is different from the similarity score for B to C which is 1 in the third plot। तो ये इन दोनों में difference क्यों है? It is because the difference is coming from the fact that the curves from for each point are different। मतलब अगर हम सी टू ए कर रहे हैं तो वो सी टू ए के लिए कर्व मेरा अलग है, ए टू सी के लिए अलग है, बी टू सी के लिए अलग है। तो दीज थ्री डिफरेंट कर्व्स हैव थ्री डिफरेंट कर्व्स, तो वो कर्व्स के बेसिस पे वो वैल्यू डिसाइड करी जा रही है। ऐसे नहीं कह सकते कि बी टू सी 0.6 है तो सी टू बी भी 0.6 ही होगा। सो दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। एंड इतना तो पक्का है कि जो मेरा log 2 जो log बेस 2 आ रहा है ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जितना सम आ रहा है उसके बेसिस पे ही हम वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, एंड द स्केलिंग द कर्व्स इंश्योर्स दैट एवरी पॉइंट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन अदर पॉइंट इन द डेटा सेट। तो ये अब उसकी बात करें दैट यूजिंग डिफरेंट कर्व्स मींस द सिमिलरिटी स्कोर आर नॉट मतलब सिमेट्रिकल। मतलब कर्व्स अगर आप कर दोगे तो ऑब्वियसली सिमेट्री कहाँ रहेगी। यू हैव टू कीप द थिंग्स आई मीन अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ए बी सी की सीक्वेंस में ही रखना है उसको बी ए सी नहीं करना, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द कर्व्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस। वही चीज यहाँ पे दिखाई है, आप डी एफ ई एफ डी और एफ ई डी का बनाओगे तो तीनों का अलग अलग प्लॉट आएगा। और वही चीज अब यहाँ पे वी विल प्लॉट जो हमारा वो वहाँ पे प्लॉट बन रहा है तो उसी को हम अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो सेम सीक्वेंस में वैसे करके वो बन जाएगा यूजिंग द सिमिलैरिटी स्कोर्स एंड डिस्टेंसेस। So UMAP will pick the two low dimensional points that it should move closer। तो वो अब आपस में DEF को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू पुश वही वाला मतलब जो हमने टीसनी में देखा था वही यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो पॉइंट सेलेक्ट करेगा एंड इट विल ट्राई टू मूव इट क्लोजर। ठीक है, बी को ए के क्लोजर करेगा ना कि EF के साथ रखेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इट कुड हैव बीन इजीली डिसाइडेड टू मूव ए को भी आप क्लोजर टू बी कर सकते थे। नाउ दैट वी नो दैट वी विल मूव पॉइंट बी क्लोजर टू ए, यू मैप विल पिक द पॉइंट दैट बी शुड मूव फर्दर फ्रॉम।
तो वो ई को, एफ को और डी को, तीनों में से एक पॉइंट उठाएगा जिससे वो दूर जाना चाहता है, एंड दैट वे द डिस्टेंस विल बी, मतलब वो ए की तरफ भेजा जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट। सपोज हमने ई को चूज कर लिया, एंड फिर ई के बेसिस पे वी विल सी के जो ई और बी का डिस्टेंस है वर्सेस बी और ए का है, सो इट शुड पुश अवे, बी को वो पुश करेगा ए की तरफ, एंड टू मूव पॉइंट बी फर्दर फ्रॉम ई, बिकॉज दे शुड बी इन डिफरेंट क्लस्टर्स। तो वही चीज़ जो अभी हमने पीछे देखा, दैट दे विल स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, तो उनका अपना अपना ग्राफ है। अगर मेरा बी ए के हिसाब से, मतलब जो मेरा कर्व बन रहा है, ठीक है, वर्सेस मेरा ई और बी के हिसाब से कर्व बन रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू टेक द डिसीजन दैट कौन से प्लॉट के बेसिस पे हम किधर को मूव कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब यहाँ पे गिवन है, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे काम हो रहा है, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं पीछे बता चुका हूँ दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी शॉर्टर बट इट हैज़ ए फैटर टेल्स। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो थोड़ा सा नीचे तक जाता है, एंड इट इज़ लॉन्गर ऑन द टेल्स पार्ट, बट टी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम बना रहे हैं, एंड बिकॉज पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द सेम cluster or the neighborhood, UMAP wants to move the point B closer to A in order to maximize this low dimension score. So because B and E are from the different clusters, UMAP wants to move the point B further from E so that it can minimize this low dimensional score. तो वो उसको उसकी तरफ भेजेगा, एंड इट विल बी फाइन, बी एंड ए आपस में पास आ गए हैं, एंड इट मीन्स दैट द क्लस्टरिंग इज being done right, and that can be plotted on a 1D, where DE को भी फिर हम distance कम करेंगे, because we want DEF to be in the same cluster, so DE पास आएंगे, and it obviously again कुछ point रखना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पे C के बेसिस पे करना है, तो वो C से उतना इसको दूर करेगा E को, and based on that the distances will be calculated and pushed towards each other. तो in the end हमारा मतलब अगर प्लॉट होके आएगा तो वो ऐसे दिखेगा, UMAP will get the things done like this. Now just like we see in the high dimensional data, मतलब यहाँ पे जो हम प्लॉट कर रहे हैं, जहाँ जैसे ABC वाला इकट्ठा था, DEF इकट्ठा था, तो हमारा लो डिमेंशनल में भी राइट हैंड साइड पे वैसे ही आ रहा है। नाउ दिखने में हमें लग रहा है अभी तक कि टीसनी और यूमैप सेम है, बट देर आर स्मॉल डिफरेंसेस। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द टीसनी ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए रैंडम इनिशियलाइजेशन। अब टीसनी में क्या हो रहा है, हर बार ना एक रैंडम इनिशियलाइजेशन हो रही थी, उसके बेसिस पे हम काम कर रहे थे, और उसके चक्कर में अगर आप टीसनी को 4 बार रन करोगे तो चारों बार डिफरेंट क्लस्टर्स बन के सामने आएंगे। So the first difference is that T-SNE always starts with the random initialization of the low dimensional graph, and because of that it will look like this, अगली बार it will look like this, उससे अगली बार it will look like this। तो हर बार वो अलग कर रहा है because the random initialization उसके अलग है हर बार। But UMAP में we have something called spectral embedding to initialize the low dimensional graphs, and what that means is that every time you use UMAP on a specific dataset you will always get the same low dimensional graph। तो मतलब इसमें consistent graph रहेगा, that's why UMAP is being preferred more than TSNE, plus UMAP is more efficient on the higher dimensional complex datasets, so UMAP is better in that form। And the other difference is that TSNE moves every single point a little bit each iteration, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा हर किसी को खिसकाता है, versus UMAP can move just one point or a small subset of points each time, and this helps in scale well with super big datasets। इसमें the best part of UMAP is, यहाँ पे वो लिखा ही हुआ है that you are not moving every point। ऐसे नहीं है कि आप हर पॉइंट को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, एंड एवरीथिंग लाइक दैट इज बीइंग डन। यहाँ पे सिलेक्टेड पॉइंट्स के साथ ही काम हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि हम बड़े डेटा सेट पे भी काम कर पा रहे हैं। एंड लास्टली लेट्स से, अब यहाँ पे सिमिलैरिटी स्कोर हम ऐसे निकाल रहे थे कि सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पे हमारा ये ग्राफ बन रहा था, एंड वी सेड दैट द shape of the each curve was determined in part by user defined parameter, the number of neighbors each point has, ठीक है। So now let's talk about what happens when we change the nearest neighbors। अगर हमने number of neighbors ही change कर दिए तो उसकी बात हो रही है, and generally speaking when you have lots of data, a relatively low value
for the number of clusters remain results small independent clusters. बट ये कह रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ी पिक्चर देखेंगे, इट माइट बी दैट आप उसको डाटा सेट को अलग से विजुलाइज कर पाओ, एंड इट इज़ वर्थ ट्राइंग डिफरेंट वैल्यूज टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर ओन डाटा। मतलब आप अपना वैल्यूज को चेंज करके देखो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मैप पे वो अलग से बता सकता है, हमें अलग अलग क्लस्टरिंग करके दिखा सकता है। So these were the references, and I have not included the mathematical part, the second video. I have only discussed the basic UMAP का कैसे काम हो रहा है and how it is helping us reduce the dimensions. Now let's see the visualization. This is the last slide. Let's see that how this k-means clustering and dbScan visualization is helping us, and we can visualize them. So this is how, I mean, एक website मिला है मेरे को where we can actually visualize k-means clustering. तो ये कह रहा है कि आप कैसे उसके देख सकते हो इनिशियल सेंट्रोइड्स। हम कह रहे हैं कि चलो हम चूज कर लेते हैं, लेट्स से यूनिफॉर्मली देख लेते हैं दैट दीज आर द यूनिफॉर्म पॉइंट्स। तो जैसे जैसे आई विल स्टार्ट पुटिंग द डॉट्स हियर, तो के मीन्स जैसे काम करता है, इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लेट्स से मल्टीपल उसके क्लस्टर्स बनाता रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन विजुलाइज, वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट फ्यू थिंग्स, तो वो उतने क्लस्टर बना देगा। ठीक है, एंड सिमिलरली डीबी स्कैन में भी डीबी स्कैन भी सौ के वो लेट्स से डेंसिटी बेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एप्सिलॉन जो हम कह रहे थे दैट्स 1 एंड मिनिमम पॉइंट्स इज 4। तो बेस्ड ऑन दैट इट इज शोइंग अस दैट दिस इज हाउ द डीबी स्कैन इज वर्किंग। ठीक है, तो ऑन ए फेशियल स्माइली, तो उसने ऐसे करके क्लस्टरिंग कर दिया है। So EPS is the epsilon value, and maybe you can randomly visualize it. ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हो। So that's all for today. The time is also up. We will meet in next lecture, and I will show you the exam sheets on Friday. That's it.